آپ کی اگر کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پرابلم کیسے سالو کی جائے گی. ہر آفس میں ایک ہیرارکی ہوتی ہے, ایک کی ہوتی ہے شروع سے, یعنی کہ باٹم سے لے کے ٹاپ تک ہیرارکی. وہ ہیرارکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے یہاں پانی کی پرابلم ہے, ہمیں واٹر ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرنا. واٹر ڈپارٹمنٹ جب جاتے ہیں وہاں ہیرارکی بنی ہوئی ہے, اس ہیرارکی کے حساب سے ہمیں کیا ہے ایک ہیرارکی, ایک اپلیکیشن ہم نے دیا, کام نہیں ہو تو اس کے ہائر آفس کا دیں, اس کے بعد ایک ہائر آفس کو دیں. اسی طرح ہمارا جو ہے الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے, اسی طرح ہماری ایجوکیشن کی پرابلم ہے, اسی طرح ہماری جو ہے ڈینس کی پرابلم ہے. تو جو ڈفرینٹ ہے رائٹنگ کی پرابلم ہے, یہ سب ہمارا جو ہے ہمیں ایڈمنسٹریشن معلوم ہونا چاہیے. ہمیں ایک لیٹر لکھنا بہت پیار سے لکھی, کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر ایک میں اس گلی میں رہتی ہوں, میرا نام یہ ہے, ایکچوئل میں کیا یہاں 3 دن سے پانی نہیں آ رہا ہے, یہاں 3 دن سے یہاں کی جو لائٹ ہے نہیں چل رہی ہے, 3 دن سے یہاں کچھ دیکھ رہے ہیں شرارتی لوگ آتے ہیں, ہلّا گلا کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوں یہاں نشے کا کام کرتے ہیں. یہ لیٹر لکھو آپ اور ان کو لکھنا ڈیٹ کتنا ایڈریس لکھوں, اس پہ ایکشن نہیں ہوگا تو ہم آگے اس پہ کام. اور ہماری جو ایک نیکسٹ ہے آخری ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن سے ہمارا مراد یہ ہے ایسا علم حاصل نہ کریے جو انسانیت سے دور ہو, جو انصاف خیال نہ کر سکے. حضرت شیخ خدا حضرت علی کی تلوار تھی, دو نوٹ تھی. ایک چیز کیا بتاتی تھی, علم بتاتی تھی, دوسری نوٹ اشارہ کرتی تھی انصاف. اگر علم ہے آپ کے پاس اور انصاف نہیں ہے, علم کا کوئی وجود نہیں ہے. کیونکہ شیطان بھی علم کا بہت بڑا خزانہ رکھے ہوئے تھے, اور علم کی جو عقل ہوتی ہے وہ مال کی عقل سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنا کی. اور علم ہے اور انسانیت زندہ نہ کر سکے, اور علم ہے تو امت کے آپ کام نہ لا سکیں. اگر علم ہے تو آپ میں امت کا ڈر نہیں ہے تو اس علم کو دفنا دیجیے. ایسا علم آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں, لیکن یاد رکھیے عالم بھی ہیں, حافظ ہیں, ڈاکٹر ہیں, آئی ایس ہیں, آرکیس ہیں, ایم ایل اے ہیں. اگر اس امت میں کمی ہے تو یاد رکھیے اس امت میں نیک لوگوں کی کمی ہے. آپ لوگ سوچیے گا اس کو, کیا واقعی نیک لوگوں کی سفر اللہ کی زمین پہ غور کرتے ہیں. تو ہم ایسا علم حاصل کریں تو اللہ کی معرفت کریں, انصاف قائم کریں, انسانیت کو پیدا کریں, دوسرے کے کام آ سکیں. کسی شاعر نے کہا جب تو دنیا میں آ رہا تھا تو رو رہا تھا اور دنیا والے خوشی منا. جب بچہ آتا ہے مبارک ہو مٹھائی کھلائیے, ہے یا نہیں, آپ ابا بن گیا, آپ امی بن گئی, ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو بچہ روتا ہے, اس کے رونے کا غم کسی کو نہیں ہوتا. لیکن جب بچہ اور وہ بچہ بیچارہ روتا ہے, دنیا خوش. وہ شاعر کہہ رہا ہے آج تو دنیا سے اس طرح چلا جا, اس طرح چلا جا کہ جو لوگ خوشی منا رہے تھے یہ رو دے, جو کہہ رہے تھے مٹھائی کھلانی, یہ کہا رو دے, اور تو ہنستا ہوا چلا جا. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ جب ہم لوگوں کی حقوق, لوگوں کی مدد کیا ہوگا, انسان کو پیدا کیا, ایک درد ہمارے دل میں ہوگا تو کہیں گا واقعی ہمارے بیچ سے کوئی رہنما چلا گیا. تو ہمارے علم کا مراد یہاں پہ ہے. اس کے طرح کمپٹیٹیو ایگزام کی جو تیاری کرنا, IAS کی تیاری کرنا, اسکول سے اپنا رابطہ بنائے رکھنا, اسکول سے آپ کا رابطہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں سوری کہ ہم تھوڑا زیادہ ہو گئے بولے, سوری. اور ماشاء اللہ امید ہے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ گئی. خدا حافظ. Jazakallah khair, sir, to give us a certain prayer. Now, I'd like to introduce Dr. Nila Khanam, a PhD in psychology, handwriter analyst, graphologist, founder and director of Ancestry Care India, member of Institute of Scholars and economist, author, motivational speaker, inspirational master trainer, has received Bharatiya Gaurav Ratna Samman from Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Bharatiya Ratna Award as Best Life Coach of the Year for her exceptional service in the field of education and social work, received from Padma Shri Awardee, Shri Padma Reddy. Global Scholar Foundation has conferred her award recognizing contribution, appreciating her efforts and knowledgeable success as an educationalist plays a major contribution to economic development of our nation, who has already bagged many prestigious awards at state, national, international, global level and world records for her phenomenal performance in the field of educational training and development sector. Her expertise has helped thousands of students and teachers
to achieve outstanding results over a period of 14 years experience. She has a strong vision over transforming lives and strongly believes in empowering the nation and empowering the students and strengthening the nation. कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा सा दुनिया से हट कर चल। कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा सा दुनिया से हट कर चल। लिख कर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। I'd like to call ma'am to deliver her speech. Thank you very much. एक सेकंड। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए, फिर मेरे वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए, मैं यूज़ कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि तो आज मैं आपके सामने रखूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे पार्टिसिपेंट्स को आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन फॉर विनिंग एंड पार्टिसिपेशन। विनिंग तो है ही, है ना? आपने पार्टिसिपेट किया, कुछ विनर्स हैं, कुछ पार्टिसिपेट किए हैं, है ना? But every time in each and every competition I say that first prize, second prize, third prize वो competition का one shot है, but for complete life participation is a big winning. कितने लोग नहीं हैं सोसाइटी में, चुने गिने बस वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, they are the winners, right? इसीलिए every time I keep on telling participate to participate but not to win. Participate to participate but not to win. क्योंकि participation ही बड़ा WWW है, win win win। हम लोगों को बस पार्टिसिपेट करना है, कितना है पार्टिसिपेट। आगे चल के क्या सक्सेस मिलेगा आपको ही पता नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा सक्सेस रखेगा, बट वी हैव टू पार्टिसिपेट। इसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबा ने पूछा सबसे बेहतरीन इस्लामी कौन है? Who is best in Islam? Who has a good character? Who is best in Islam? Character. आपको आगे ले जाएगा कैरेक्टर, कहीं भी हो you are represented with the character। मानते हैं सब? हमारी अखलाक बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर किस पे किया है? अखलाक। अल्लाह एक अल्लाह, कुरान, हमारा कुरान, हमारा हदीस, हर घर में कुरान है, हर घर में हदीस है, लेकिन दुनिया हमें इलिटरेट कहती है। मानते हैं आप? कुरान है, हदीस है, हर घर में है, लेकिन दुनिया हमें इलिटरेट कहती है। क्यों? हमारे अंदर अमल नहीं है। वरना क्यों दुनिया कहेगी कि हम वी आर इलिटरेट? आर वी इलिटरेट? एनीबॉडी कैन से वी आर इलिटरेट? देन व्हाई द वर्ल्ड इज सेइंग वी आर इलिटरेट? मानते हैं ना? कुरान सब कुछ बताता है, पास्ट बताता है, प्रेजेंट बताता है, फ्यूचर बताता है, हमारी हर कामयाबी, शिफा सब कुछ कुरान में है। हदीस तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा हम उठना बैठना कैसे, हर तरबियत, डिसिप्लिन, हर चीज़ हमें सिखाता है, फिर भी दुनिया हमें इलिटरेट कहती है। इसीलिए हम लोग पहला सूरा कौन सा है? पहला सूरा जो कुरान में है वो सूरह फातिहा, द ओपनिंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अगर नमाज में आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज इनवैलिड है। क्यों? बिकॉज आप कुरान पढ़ते हैं तो पहले क्या कौन सा सूरा पढ़ते हैं? सूरह फातिहा। क्यों? इट्स अ ओपनिंग, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड वी, हम।
हमारे दरमियान बताता है सूर्य फातिहा। तो पहले हम जो काम करते हैं हम क्या करते हैं, शुरू से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो बरकत है हर चीज़ में बिस्मिल्लाह से करो। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं आपको ही पता नहीं चलेगा, बिस्मिल्लाह बहुत ज़रूरी है हर काम में। तो जब आप तर्जुमा देखते हैं सूर्य फातिहा का, तो पहले तर्जुमा में आयत क्या बताना है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफें किसके लिए, अल्लाह के लिए। अगर हमारे तारीफ बयान करने लगे तो एरोगेंट, भाई एरोगेंट शैतान है। तमाम तारीफें किसके लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। क्यों, वो तमाम जहानों को पालने वाला है। वी एग्री विद दैट। तमाम जहानों को कौन पालने वाला है, अल्लाह सबको पालेगा है ना। चुंटी वो बोलते हैं ना, काली चुंटी को काले पहाड़ पे भी पालने वाला है, सबकी सुनने वाला है। तो हमें किसकी फिक्र है दुनिया में, जब पालने वाला है अल्लाह सुबहान झूठा नहीं है, उसका वादा सच्चा है। जब वो पालने वाला है तो हमें किसकी फिक्र है, हम क्यों फिक्र करते हैं। अल्लाह सुबहान खुद बता रहे हैं कि सारी दुनिया की कायनात का मालिक मैं हूँ, मैं पालनहार हूँ, मैं चलाऊंगा। अगर हमें फिक्र करनी है तो किसकी फिक्र करनी है, जब मरने के बाद खबर में जाते हैं ना, उसकी फिक्र करना है, कयामत की फिक्र करना है, आखिरत की फिक्र करना है। क्योंकि दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू ने वादा कर दिया है। यही कह रहे हैं आयत में, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, तमाम जन्नतों के पालने वाले अल्लाह सुब्हानहू है, और बड़ा मेहरबान है और बड़ा रहम वाला भी है। हमने माँ को तो सबको देखा है, उससे वाली रहम, बिकॉज शी इज कनेक्टेड। मेल्स आपको जिम्मेदारी अलग है, फीमेल्स आपको जिम्मेदारी अलग है। माँ एकदम तलमिरा देती है, कुछ औरत को कुछ हो जाए, मानते हैं, यू नो व्हाई शी इज कनेक्टेड विद द पेन। जो 9 महीने शी इज कनेक्टेड विद दैट पेन, एंड जो ड्यूरिंग वो पेन, एवरीथिंग शी इज कनेक्टेड विद द चाइल्ड। तो कितना रहम करती है अपने बच्चों पर। तो दुनिया में अल्लाह सुब्हान ताला 100% में सिर्फ 1% मोहब्बत दुनिया में दिया है, 1%। 99% किसमें है मोहब्बत, अल्लाह के पास है। और वो 1% की 1% में सबको बांटा है, भाइयों में, बहनों में, बीवियों में, माँ में, बाप में, दोस्तों में, ये बटा हुआ है। 99% अल्लाह के पास है। तो अल्लाह सुब्हान ताला आयत में फरमा रहे हैं कि मैं बहुत रहम वाला हूँ और करम वाला हूँ। तीसरा जो है, क़यामत के दिन का मालिक है। आज हम फिक्र करेंगे तो किसकी फिक्र करेंगे, आज मैंने कितने कमाया, क्या किया, मैं कितना हासिल किया। अगर हम इसके बजाय क़यामत के दिन का सोचे ना, अभी मैंने यहाँ पे किसी को बुलाकर इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग यू और आपको प्रेस कर रही हूँ तो कितना अच्छा लगेगा है ना, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं जिल्लत करने लगूँ तो अच्छा लगेगा। काफ़ी गिनती चुनती है यहाँ पर, लेकिन जब अल्लाह सुब्हान ताला के सामने जब खड़ेंगे ना, तो सारी कायनात, जब आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह क़यामत तक के जो लोग खड़े रहते हैं, उनके आगे हमें हमारा नाम कमाना है या जिल्लत करना है, हमारे नाम का। क़यामत के दिन का सोचना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत का दिन अगर सोचेंगे ना, दुनिया आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह, बहुत आसान हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ किसकी इबादत करनी चाहिए हमें, अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए। और किससे मदद लेनी है, अल्लाह सुब्हान ताला। ट्रस्ट मी, अगर आप तवक्कल हो जाए और सिर्फ मदद अल्लाह सुब्हान ताला के पास पूछे, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको मदद कहाँ से आ गई। तो ये ना भूले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहले जो आयत बनाया है वो हमारा ईमान बताता है। जब हमारा ईमान मजबूत हो जाता है तो हम किसकी वर्शिप करने लगेंगे, इबादत करने लगेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला की, और हम लोग सिर्फ उसकी मदद मांगेंगे। इसके बाद हमको एक हिदायत मिलती है सही रास्ते पर चलने की।
सिरात मुस्तकीम, सही रास्ते पर चलने, और सीधी राह और सच्ची राह पर। जब हम लोग सीधी और सच्ची राह पर निकलेंगे, जब आप सोसाइटी को देखेंगे तो अच्छे चीज़ों को आप ग्रैप्स कर सकेंगे, तभी तो जन्नत का रास्ता बनेगा। सही को सही समझ सकेंगे, गलत को गलत। आज ये सब डिस्कस करने का मकसद देखो यही है कि मेरी बहना है, अगर एक मर्द तैयार कर सकता है तो एक घर को करेगा, एक औरत ना खानदान करेगी, खानदान को सही करेगा। जो हमारा ईमान अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारी औलाद अच्छी हो जाएगी, हमारी औलाद अच्छी हो जाएगी तो खुद हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ किसी को पता है आप कल क्या खाएंगे? किसी को पता है हम कहाँ पर मरेंगे? किसी को पता है? ये सिर्फ अल्लाह को पता है। कई बार सबके जिंदगी में मैं सोचूंगी कि आज मैं बिरयानी खाऊंगी, बट जाके कुछ और खाऊंगी, बिकॉज वी डजंट नो व्हाट वी हैव, इट्स ओनली अल्लाह सुब्हानहू तआला। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, दुनिया अल्लाह की तवक्कल कर दो, दुनिया जो है अल्लाह की तवक्कल कर दो, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जानते क्या होने वाला है। जो हम इस दुनिया में आए थे इबादत के लिए, वर्शिप। जब अभी सभी बता रहे थे कि ट्रूथ और जस्टिस, ये सब कहाँ से आएगा? शुरुआत ही यहाँ से है। पहले हमारा ईमान पक्का करना है, हमारी इबादत, इसके बाद ही हमारा ईमान पक्का होता है ना हमारा लेवल। अब हम सबको लोग लेंगे तो दूसरे लोगों को दूसरी हिदायत है। क्यों? जैसे हम मेहनत करते हैं वैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अता करता है। जैसे अभी कॉम्पिटिशन देखा, एक को फर्स्ट प्राइज, एक को सेकेंड प्राइज, एक को पार्टिसिपेशन। क्यों? हमारी मेहनत जैसी है दुनिया में, वैसे ही आखिरत में हमें वो सफल दुनिया में और आखिरत में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के तवक्कल होना है, ओके। अल्लाह के साथ उसकी मजबूत रस्सी पकड़ ले, जो कुरान में है, जो हदीस में, अगर मजबूत रस्सी पकड़ ले तो अल्लाह का वादा है दुनिया और आखिरत दोनों भी हमारे, इंशाअल्लाह। दुनिया और आखिरत दोनों भी हमारे, हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं और एक सूरह मुदस्सिर है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रेवलेशन मिला, यानी कि कुछ नाज़िल हुआ, जिब्राइल अमीन आके नाज़िल फरमाए कुरान, तो पहला वर्ड क्या कहा उन्होंने? इक़रा, यानी कि पढ़ो, पढ़ने वाला कामयाब है। वो शायद दुनिया भी इल्म हो या दीन की इल्म हो, लेकिन पढ़ने वाला क्या है? कामयाब है। इंग्लिश में प्रॉवर्ब भी है ना, रीडर इज अ लीडर, मानते हैं? रीडर इज अ लीडर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी पहला वर्ड अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो क्या है? पढ़ो। जब आप पढ़ते हैं आपको सही इल्म मिलता है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप पढ़कर समझेंगे, सामने वाला कुछ पूछेगा तो कॉन्फिडेंटली यू कैन आंसर दे। आज आप जैसे शफीक साहब बता रहे थे, आप हिजाब पहनकर कहीं जाते हैं तो आप मुश्किल फेस करते हैं ना। तो आप अगर पढ़कर सीख लेंगे तो आप धड़कर कहेंगे, यू डजंट हैव अ राइट टू आस्क मी दैट, इट्स माय राइट, कॉन्स्टिट्यूशन से भी और हमारे दिन से, यू गेट द कॉन्फिडेंस। तो पढ़ो। फर्स्ट रेवलेशन। सेकेंड रेवलेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिली थी? यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अमीन से पहली चीज़ उनसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई करें। जब रेवलेशन मिला तो फर्स्ट टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में आगाह करें। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम मुसलमानों को अमल में लाना है, हर माओ को अमल में लाना है। आप में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है। क्लीनलीनेस, पाकी आधा ईमान है, लेकिन हम लोग बाहर वाले क्या कहते हैं? अनक्लीनलीनेस। मानते हैं आप ये? आपकी बरकत, आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, सब कुछ आपकी पाकी में है। ये सूरह मुदस्सिर में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, पहला काम आपका क्या है? आगाह करे। हमारा
भी वही है, हम कहीं भी जाए हमारा काम क्या है, अल्लाह के बारे में आगा करें और उनकी बड़ाई करें। दूसरा, पाकी मेंटेन करें। पाकी, हमारा मुसलमान के एरिया को देखो, पाकी है, तो पाकी है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कुरान कहता है, हदीस कहता है, अल्लाह रसूल ने वही सिखाया है। सेकेंड रिवायत मिलते ही, नासिल होते ही हमें क्या सिखाया जा रहा है, पाकी, जो हमारे में नहीं है, पाकी मेंटेन करें। और तीसरा जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि किसी के सामने किसी को एहसान कर किसी के ऊपर एहसान कर ज्यादा लेने की ख्वाहिश ना करे। किसी के ऊपर हदीस है ना, जो एहसान जताएगा वो जन्नत नहीं जाएगा, है नहीं हदीस। एहसान कर ज्यादा लेने की कोशिश ना करे, बहुत जरूरी है। तीसरा और चौथा है, बहुत जरूरी है, जो ईमान पर रहेगा अल्लाह की आजमाइश ज्यादा होती है। अल्लाह की आजमाइश ज्यादा होती है, यानी क्या हम लोगों को सब्र लाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो भी हमें तकलीफ अगर होना है तो ईमान वाले को होगी और दुनिया में होगी जो हमें एग्जाम पास करना है, तो हमें क्या करना है, सब्र करना है दुनिया में इंशाअल्लाह। और बहुत ज़रूरी है, और एक सूरह मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम बच्चों की अखलाक बहुत ज़रूरी है और हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और अगर अखलाक अच्छी हो गई तो हम कामयाब, घर भी कामयाब, सोसाइटी भी कामयाब, दीन भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, सब कुछ। तो सूरह लुक़मान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अगर सबको पहली चीज़ सिखाना हो तो क्या सिखाना है, बच्चों को जो सिखाना है शुक्रगुजार, शुक्रगुजार बनाना है। क्या बनाना है, शुक्रगुजार बनाना है। शुक्रगुजार किसका बनाना है, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, दूसरा माँ बाप का। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के माहौल में क्या सिखाना है, शुक्रगुजार बनाना है। हमारे बच्चों की तरबियत हमें पता है, आज के जनरेशन में हमारे घर की तालीम अलग है, बाहर की तालीम अलग है, एनवायरनमेंट एकदम अलग सा हो रहा है, तो बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे एक फ्यू टिप्स सूरह लुक़मान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है हमें। पहले हमें शुक्रगुजार बंदा बनने का, शुक्रगुजार करने का, माँ बाप का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का देना है। दूसरा बहुत जरूरी है, शिर्क। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कबीरा से कबीरा गुनाह कर दो, सगीरा हो कबीरा हो, आप माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। आप माफ़ी मांगो, माफ़ करूंगा। अगर कुछ माफ़ नहीं होगा तो शिर्क क्या है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इबादत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, मदद भी अल्लाह से, सब कुछ अल्लाह से। क्योंकि हम यकीन रखते हैं, अगर बच्चे को कुछ होना चाहिए तो इमीडिएटली किसके पास जाता है, माँ के पास या बाप के पास। क्यों, उसे भरोसा है कि मेरे माँ बाप मुझे करेंगे, तो वही भरोसा हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है, तो हमें कहाँ पे जाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। तो शिर्क से बचेगा और अल्लाह की तरफ लौटना है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये हमें बच्चों को भी डालना पड़ता है। और नसीहत कैसे देना है हमें बच्चों को, नमाज पढ़ने के लिए। जब आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पक्का हो जाएगा, अल्लाह से रिलेशन बनाने के लिए सेकंड स्टेप पता है क्या है, नमाज। अगर आप सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए आपका ईमान उतना पक्का नहीं है। अगर आप सिर्फ फर्ज पढ़ रहे हैं तो आपका ईमान और अल्लाह का लगाव उतना है। अगर ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो आपके ईमान में बढ़ोतरी हुई है। असर, मगरिब, इशा से अगर आप तहज्जुद को आ गए ना, इशा से अगर आप तहज्जुद को आ गए ना, दुनिया और आखिरत में आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। सच्चे ईमान से अगर अपने तवक्कल हो जाए तो देखिए आपकी जिंदगी कैसी होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रॉब्लम के टाइम पर, प्रॉब्लम तो हर एक कंट्री में है, सबके पास है। आपके जब प्रॉब्लम होती है, थोड़े दिन आपके आजमाइश खत्म आ गया है, आपको समझ में भी नहीं आता कि आपकी मदद कहाँ से आ गई, और सब फरिश्ते ने आके कर दिया। तो ईमान के लेवल से हैं, ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस दे दिया भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको गेज करना है आपका ईमान का, और आपको ईमान में है, आपके बच्चों को भी यही तरबियत देना है।
क्योंकि हमारे जन्नत का रास्ता कौन है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह, सॉरी हमारे बच्चे है ना, हमारे जन्नत का रास्ता हमने पोजीशन में गए हैं, ये एक या दो, लेकिन हाई पोजीशन हमारी अच्छी नेक औलाद है, हमारी अच्छी नेक औलाद है। तो हमारे बच्चों को अखलाक देना, देखो आज दुनिया में हम आगे करते हैं, मेरी औलाद है थोड़ा ज़्यादा देना लूँ, तो किसी और की औलाद है थोड़ी कम देना लूँ, नहीं, आखिरत का सच है, अल्लाह के सामने खड़ा है। अगर इंसाफ करना हो तो आपकी औलाद खड़ी है और बाहर वाला कोई खड़ा है, तो अगर आपकी औलाद गलत है तो बताइए कि वो गलत है। ये हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज हमें अल्लाह के सामने एक दिन खड़ना है, हमारी सूरत दिखाना है, तो हमें यहाँ इंसाफ करना सीखना है, चाहे वो हमारा अपना हो या गैर हो, हमें ये सीखना है कि हम एक इंसाफ करने वाले, बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में ना अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दी है, बट हमारे पोजीशन आखिरत है, अल्लाह का खबर है। जस्ट इमेजिन हम 40-50 साल को 50 साल, अच्छा चलो 60 साल क्यों गुजर जाते हैं, बिना क्यों गुजरे है ना, लेकिन जब हम खबर में जाते हैं तो क़यामत तक हमें खबर में रहना, क़यामत तक, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल